सब जगह नेपाल की खबर चर्चा में। वहां पर जेनजी ने देश में बदलाव के लिए क्रांति कर दी है। फिलहाल नेपाल में कौन बनेगा प्रधानमंत्री का सवाल सबसे ज्यादा वायरल है और अब वो तस्वीर भी साफ हो गई है कि सुशीला कार्की को जिम्मेदारी मिलने वाली है। लेकिन इधर भारत में जेनजी एक नई क्रांति की शुरुआत कर रहा है। नेपाल में भी जेनजी था, हिंदुस्तान में भी जेनजी का एक मामला सामने आया है। मुद्दा है सड़क पर लगने वाला जाम। जी हाँ, सड़क के ट्रैफिक जाम की वजह से स्कूल में पढ़ने वाली 3 बच्चियों ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड करके इसे एक बड़ा मुद्दा बना दिया है। जाम केवल इनकी नहीं, हम सब की समस्या है। यही हमारी इस वक्त की एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है। So, this is where we spend most of our time, in this bus. I'm Nadia. I'm Anya. I'm Meher. And we're currently stuck in traffic. We live around 14 kilometers away from school. And in the mornings with minimal traffic. I promise I didn't fake that. These are actually the roads of Bangalore. Anyways, In the morning it takes around 20 minutes to reach school, but in the evening it takes around 1.5 to 2 hours to reach back home. And we used to reach home at 3:15. Now we're reaching at 4:30. And because of that, we have to postpone extracurricular activities, and it leaves us with less time to study. And this leads to a huge emotional strain due to the exhaustion and all our energy being drained from being in this bus. And sometimes we even get physically injured because of the bumps. Like, I'm not joking. And sometimes when we're stuck in traffic jams, we can literally run home faster than that. I'm not exaggerating. And this is something we really don't want as a part of our daily routine to be in the bus for 2 hours. Yeah. So something has to change. Please help us. This cannot be the new normal. Thank you. ये कहानी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध शहर बेंगलुरु की है। ये वीडियो स्कूल के 3 बच्चों ने तैयार किया। #वॉइस इन जैम के नाम से सोशल मीडिया पर अपलोड किया। उसके बाद से शहर में बेचैनी है। एनडीटीवी इंडिया की टीम ने इस प्रयास को परखने के लिए फील्ड पर अपना रिपोर्टर उतारा। जाम के लिए कुख्यात सड़कों पर निकले। स्कूल की ओर जाने वाली एक सड़क पर हमारी टीम को कुछ लोग प्रदर्शन करते हुए दिखे। जब एनडीटीवी इंडिया की टीम ने जाम दिखाने के लिए कैमरा मोड़ा तो स्क्रीन पर अजीब संयोग बना। सड़क पर भारत के नक्शे का निचला हिस्सा दिख रहा है जिसमें पानी भरा है। विचित्र संयोग देखिए, भारत के प्रायद्वीपीय हिस्से में ही बेंगलुरु है जहां सड़क की खराब हालत की वजह से भीषण जाम लगता है। Done anything for the drain. From the past year, 3 years, it has becoming worse and worse. There, last 2 years back, there was full flood here where we put an image of boat and all editing, everything. Same place we did, but nothing is happening. We met multiple commissioners, owner commissioner, even current Ramesh DS, who is the commissioner of East. He came and visited, but nothing is happening except that our kids are falling, we are falling, and everyone is suffering. 3 years it has been like this. Before that it used to take some 30 minutes to reach to school, but now because of the traffic and these potholes, people cannot see where they're moving and they cannot recognize where is a pothole, where is the road, and because of these rains also you cannot recognize where the pothole is. Almost 5 to 6 months of tax is taken in a different forms for this kind of leaving. So that is why we are asking, we want the tax to be refunded and we will build our city and let MLA MPs sit at their home peacefully. We will take charge of everything by refund. एनडीटीवी इंडिया की टीम बड़ों के बीच खड़े जनरेशन जी और जनरेशन अल्फा के इमोशन को लेकर आगे बढ़ी। हमारा टारगेट वो जेन जी थे जिन्होंने बस पर जैम की रियलिटी रिपोर्ट तैयार की थी। कोशिश के बाद एनडीटीवी इंडिया की टीम को वही बस और उसमें वही जेन जी मिल गए जिन्होंने सोशल मीडिया पर वॉइस इन जैम के साथ मदद की गुहार लगाई थी। We were like voicing everyone's thoughts. Our parents group chat was like, wow, thank you for making this video, because we were speaking for not only our apartment but like honestly like the whole Bangalore, all students in Bangalore. The amount of time that we're losing out in these buses is like, I think for me it's 3 hours a day, which is a lot, and I come home tired. I only have enough time to like study for school, and sometimes in the morning we come really late because of the roads. When we go home, sometimes we have to cancel our classes for extracurriculars because we don't have time for that. Yeah, I mean sometimes we even get injured because the roads are extremely bumpy. We end up hitting ourselves, and
It's an unpleasant and a long journey, and we always get back home and we're tired because of headaches. इसके बाद हमें इस बस में ही बैठी एक और महिला मिली जो जैम के खिलाफ एक मार्मिक संदेश दे रही हैं और एक बड़े रिसर्च की प्रणेता भी हैं। Their children already lost 2 years of schooling thanks to the pandemic. And now, instead of being in school or on the sports field or just hanging out with their family, friends, or pursuing their passion for the arts or for science, for innovation, for making, they're actually spending an average of 180 minutes a day on the school bus. So this means, A, it's taking away from their learning, their development, their well-being. We're seeing a huge spike in cases of anxiety or in not wanting to be around people, of other mental health issues post-pandemic, and this is compounding that. बच्चों की शिकायत पर एक बड़ा प्रयास किया गया और जैम पर सर्वे करवाया गया। तब जाकर एक रिपोर्ट तैयार हुई जिससे पता चलता है कि बेंगलुरु में 30 से 40 हजार छात्र हर दिन कम से कम 180 मिनट जाम में गुजारते हैं। साल भर में औसतन 600 घंटे जाम में फंसे रहते हैं। हर 2 साल में सड़क जाम में इतना वक्त खो जाता है जितना एक स्कूल टर्म पूरा करने में लगता है। बच्चों की 1/4 जिंदगी बस में गुजर जाती है। बस की औसत रफ्तार 6 किलोमीटर प्रति घंटे ही रहती है। So when we carried out the study, the key things that we found were, one, potholes are a huge issue. There are so many potholes on this road that it's impossible to go down this road without maybe experiencing like 100 bumps on the way. Another aspect of it is definitely the fact that there's poor driving ethics. People don't drive on the right side of the road. There are no lane markings, which just leads to a lot of chaos and confusion. And that's why everybody on the road isn't sort of adhering to traffic regulations, which leads to a lot of violations. I think the third part of it is definitely the lack of mobility infrastructure. बेंगलुरु भारत की सिलिकॉन वैली कही जाती है। यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का हब है। इंजीनियर्स और बेंगलुरु के कामगार देश की शान बढ़ाते हैं, लेकिन बदले में उनके बच्चों की 1/4 जिंदगी सड़क जाम में गुजर जाती है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रैफिक जाम केवल बेंगलुरु की समस्या नहीं है, ये पूरे देश की समस्या बन चुकी है। इसका स्केल इतना बड़ा है, ये समझने के लिए हम आपको एक डेटा रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं। बेंगलुरु में ट्रैफिक जाम से सालाना 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। बेंगलुरु में 10 किलोमीटर की यात्रा तय करने में औसतन 34 मिनट 10 सेकंड लगते हैं। 2023 में 28 मिनट में 10 किलोमीटर की दूरी तय होती थी, मतलब 2 साल में 5 मिनट की बढ़ोतरी हो चुकी है। 2022 में बेंगलुरु देश का सबसे धीमा शहर घोषित किया गया था। बेंगलुरु में 1.5 करोड़ लोग रहते हैं, यहाँ 1 करोड़ गाड़ियां हैं। 2027 में लोगों से ज्यादा गाड़ियां यहां पर हो जाएंगी, तब सड़क पर जाम की हालत क्या होगी, इसका जवाब सोचकर ही डर लगता है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि जाम केवल बेंगलुरु का सच नहीं है, ये पूरे भारत की समस्या इन दिनों बना हुआ है। जाम की वजह से जीडीपी का 3% बराबर नुकसान होता है, कुल ईंधन खपत का 10% नुकसान होता है। भारत का सालाना 1.44 लाख करोड़ रुपए का नुकसान रिकॉर्ड किया जाता है। 2028-19 के बजट का ये 5.73% है। अब मैं आपको बहुत चौंकाने वाली बात और बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, ये इस बारे में है कि जाम देश के किस शहर को पीक आवर में कितना स्लोअर कर देते हैं, यानी धीमा कर देते हैं। जाम दिल्ली को पीक आवर में 129% ज्यादा स्लो कर देते हैं, मुंबई को 135% स्लो कर देते हैं, बेंगलुरु को 162% स्लो कर देते हैं, कोलकाता को 171%, जबकि सिंगापुर में जाम की वजह से पीक आवर में 57% ट्रैफिक स्लो होता है, हांगकांग में 63%, ताइपे में 70% और बैंकॉक में 105% ज़्यादा समय लगता है, यानी चीज़ें धीमी हो जाती हैं। तो भारत के तमाम जो शहर हैं वो ज़्यादा स्लोअर हो जाते हैं ट्रैफिक की वजह से बनिस्बत दुनिया के तमाम दूसरे बड़े शहरों के।
अब जाम के नुकसान को और करीब से फील कर लीजिए। अगर आज भी जाम के नुकसान को 1,40,00,000 माने और ये रुक जाए तो इतने खर्च में 70 नए एम्स बन सकते हैं, 271 बड़े मेडिकल कॉलेजेस हिंदुस्तान में बन सकते हैं, दिल्ली मुंबई के बीच 8 लेन का 1900 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बन सकता है, 2400 किलोमीटर लंबी 6 लेन एक्सप्रेसवे भी बन सकते हैं, जेवर जैसे लगभग 5 नए एयरपोर्ट बन सकते हैं, लगभग 86 नए राफेल विमान खरीदे जा सकते हैं, INS विक्रांत जैसे 7 विमान वाहक पोत भी बन सकते हैं, प्रोजेक्ट 75 के तहत उच्च क्षमता वाली अत्याधुनिक 12 पनडुब्बियां भी बनाई जा सकती हैं। तो देखिए मामूली सा दिखने वाला जाम आपसे और हमसे कितना विकास छीन रहा है। इसलिए इसे बेंगलोर के जेनजी की बात समझकर मत छोड़िए, आगे बढ़िए, इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए और इस हैशटैग की तरह ये करना बहुत ज़रूरी है कि पूरे हिंदुस्तान को ट्रैफिक जाम से निजात जल्दी मिल सके।